بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سا سین تھا، اور اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو رعب تھا ہی، اب دونوں بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے، ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازوں پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑواں کنگن اور بھابھیوں کو ہیروں کے ٹاپس، روشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند، گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑی ہے، خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مریل نہیں ہے۔ یہ صاف ثانیہ اور بھابھی کی اسمارٹنیس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں، وہ مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے، لیکن نصرت بیگم اس کا ایک بھی اعتراض خاطر میں نہ لائی تھی، اور اب روشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا کہ سب گھر والے حیران تھے، چونچلے تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پھیلاوا سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے بس ایک میں ہی میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی، کبھی یہ تو کبھی وہ، فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہر کوئی ماتھے پر سجا کر گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے بآواز بڑبڑاتے ہوئے شیزا کے منہ میں فیڈ ٹھونسا تھا۔ بھابھی، 1 کپ چائے بنا دیں۔ ٹک ٹک، پہلے دروازہ بجا تھا اور پھر شانی کا چہرہ محا فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دوا کی میڈیسن لینے گئی ہیں، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ لبوں پر کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں ہنوز محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتی، اور اس نازنین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، ساتھ نگٹس تل لینا، اور آ جاؤ تم بھی، لاؤنج میں خوب محفل گرم ہے، وہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا آرام، 2 کے بجائے 10 کپ بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی، ہنی مون پر جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب اس نے سنا کہ ناران کاغان جانے کا پروگرام بن رہا ہے، اس کا تو دماغ ہی کھول اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنہ خواب خوب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کاغان کی سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے اکلوتے تھے، جنہیں خوب پلو سے باندھ کر رکھا؟ یہ ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن ساس نے کہہ دیا کہ وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور اب بانجی کو کھلی اجازت تھی۔ امریکن پلس جو تھی، اب بہو جو جینز ٹاپ میں گھوم رہی ہے، تو ابو کے خاندانی وقار پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پاجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا، ہمارے گھرانوں میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔
सानिया का एक एक टांका अदड़ रहा था। सारी बातें याद आ रही थी। उसे तो शादी के एक हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रवाज, असूल, कायद लिखा पढ़ा दिए गए थे और फिर उसे भाभी के नक्शे कदम पर चलना था। और भाभी जो थी अल्लाह मियाँ की गाय। मजाल है कि जो पेशानी पर बाल भी पड़ जाए या किसी काम में पीछे रह जाए। सलमा जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। उसकी वजह ये थी कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी, तो वो एक दूसरे का बरम संभाले बैठी थी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो बड़ी खुश होती थी कि चलो डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, 2-3 डिशेस बनती हैं, मीठे में भी ज़रूर एक डिश होती है। और बाद में जब ये मशक्क़त तलब काम खुद करना पड़ा तो उसे जी भर कर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं या फिर वो नई नई दुल्हन है, तो शायद इसके एजाज़ में ये सब एहतमाम किया जाता है। लेकिन खाने की मेज़ पर 2 अफराद क्यों ना हों। डिश में चावल, डूंगू में सालन, सैलेड, रायता और मीठे का डूंगा, कटोरियाँ अलग। इतने बर्तन देखकर उसे जो उबाल उठते वो अलग कहानी थी। नुसरत बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारी इसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अयाशी ख़त्म। फिर बड़ी नंद ने पूछ लिया, सिलाई आती है? उसने झट नफ़ी में गर्दन हिलाई कि ये तो आ बैल मुझे मार वाला मामला था। लेकिन रूही तो कह रही थी कि तुमने कोर्स कर रखा है, पर बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई, इसलिए बमुश्किल जान छिड़ाई। लेकिन नाजी को अपनी बात मनवाने की आदत थी, तो इसमें क्या मुश्किल है? गुड़िया और किरण के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि अगले रोज़ 2 शापर भी भिजवा दिए। अब वो बड़ी खुश थी कि चलो 4 दिन आयमा भी यशी कर ले। फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन इसके ज़िम्मे लगाएंगी। मगर वो तो अम्मा की बांजी थी ना, वो भी अमेरिकन पलट। हनीमून से वापस आकर भी इसके हाथों की मेहंदी गिली ही रही। ना इससे मीठा चटवाई की रस्म हुई और ना इसने किसी काम को हाथ लगाया और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर इसका बरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सधारें तो कुछ रूटीन सेट हुई थी। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलकर निपटा लेती थी। लेकिन उसने सास को हमेशा ही भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने उनकी तारीफों के पुल होते। खानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी को साथ लेकर जाती। भाभी के बच्चों के कपड़े ब्रांड और बुटीक से लिए जाते और उसे आम से बाजार से लाकर दे देती कि भाभी का मियाँ यूनान में सेट था और ज़्यादा कमाता था। जब से रोशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने देने हैं। अब सास की नाइंसाफियाँ खुलने की थी। शायान सब देख रहा था, मगर क्या करता, वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने शानी से बात की तो उसने अपने रोने शुरू कर दिए। फिर इधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो सेट होते ही उसे बुला लेगा। लेकिन लगता था उसका अगले 10 साल भी सेट होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि वो अभी खुद अपने ससुर के ज़ेरे कफालत था। शायान ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया। कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और दुबई चला गया। भाइयों और माँ से इसका दिल बहुत बदजन हुआ। यूनान से 7 साल उसने कमा कर जो भेजा था, वो नुसरत बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भर का जेज दे दिया था या फिर अपने जोड़े, जेवर और खाने पीने की अयाशियों में अड़ा दिया था।
शयान ने सोच लिया था अब वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा, और जब उसने घर पैसे नहीं भिजवाए थे तो अब एक नया महाज खुल गया था। काम वाली जाने खुद छोड़ गई थी या नुसरत बेगम ने ही आने से मना कर दिया था। आयमा के घर आने वाली पहली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे इस घर में पहला बच्चा आने वाला हो। इसको तो सास ने हथेली का छाला बना रखा था। हर काम के लिए अब उसे ही आवाज़ लगती थी। जब भी काम का टाइम होता भाभी अपना फैलावा फैलाकर बैठ जाती, या अलमारी सेट करने लग जाती, या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती, या मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती। अभी भी शाम के बर्तन धोकर वो कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब आयमा की आमद हुई। भाभी, मुझे मैंगो मिल्क शेक बना दो, खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगो मौजूद हैं और ब्लेंडर वहाँ रखा है, वो कहकर किचन से निकल आई थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चलो, सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए? वो भी घर की बहू है, इसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए था। पर कौन सी जिम्मेदारियां? नुसरत बेगम ने तो इस पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं। तो क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी? उसे खुद ये हैरत हुई और अगले ही लम्हे उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने हक के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर अगले रोज़ वो भी आराम से देर तक सोई थी। उठकर किचन में झांका। घर के सब अफराद नाश्ता कर चुके थे सिवाय आयमा के। वो शायद इसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसने भी अपना और शिजा का नाश्ता बनाया और लेकर कमरे में चली आई। ये बर्तनों के ढेर को नज़रअंदाज करते हुए उसने महज अपने बर्तन धोए थे, और फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल निकला था। एक एक करके उसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। घर में कोई भी न बोला, इसलिए कि जब मासी निकाली है नुसरत बेगम ने, तो फिर सब अपना अपना काम खुद करें। सानिया के दिन भी फिरने वाले थे, क्योंकि उसके शोहर ने दुबई में कदम जमाने के बाद अपनी फैमिली को दुबई बुलवाने का फैसला कर लिया। नुसरत बेगम ने खूब वावेला मचाया, पर उनकी एक न चली। आयमा की ज़िंदगी के भी सुनहरी दिन अब नुसरत बेगम को बोझ लगने लगे। बड़ी भाभी अपने मूड की थी। सानिया के जाते ही उन्होंने भी अपना किचन अलग कर लिया। यूं घर की सारी जिम्मेदारी अब नुसरत बेगम के सर आ गई। आयमा कोई काम ना करती थी, न उसको आदत थी। घर हर वक्त गंदा रहने लगा। नंदू को भी प्रोटोकॉल मिलना बंद हो गया। आखिर उनकी खिदमत अब कौन करता? सानिया तो थी नहीं। यूं जहां सानिया की ज़िंदगी में दुबई आकर सुकून आया, वहीं नुसरत बेगम उलझ गई। अब इनको रह रह कर सानिया की कदर आ रही थी कि उन्होंने सानिया की परवाह नहीं की। सानिया के शोहर ने अपनी बहनों की भी शादियां की, लेकिन सानिया ने आज तक न जतलाया था। बेटा बेरोजगार क्या हुआ? नुसरत बेगम ने तो आंखें माथे पर रख ली, गोया वो हमेशा से मुफ्त की रोटियां तोड़ता हो। सानिया की कदर नुसरत बेगम को बहुत देर से आई। सानिया ने गुड़िया और किरण को स्कूल डाला और खुद भी टीचिंग कर ली। जिंदगी और आसूदा हो गई। दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाने लगे। नुसरत बेगम बस आह भरती रह गई कि उन्होंने हीरे की कदर ना की। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।